How many types of Six nouns are types there? Can of you noun, explain? ma'am. Name them all and explain me in briefly, as briefly as you can explain. As briefly as you can explain, name all the nouns that you know, and we can start with the questions. All right, this will be your homework. Do one thing. नेक्स्ट क्लास में आपको मुझे सबको आपको करना क्या है, नेम करने हैं सारे नाउन, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करिए कि वो किस टाइप के नाउन है, इफ दे आर यूज्ड विद एनी पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन वो भी मेंशन करना है. इफ यू नो नहीं पता है तो वहां पर लिख देना कि नो रूल्स आर नोन टू यू. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. ये आपको नेक्स्ट क्लास मुझे करके बताना. टू टाइप्स का नाउन होता है. Okay, we'll discuss it after you have submitted your homework in the next class. Today we'll be discussing some questions related to direct and indirect words, sentences. आपके direct और indirect sentences से related जो questions आते हैं, उन questions के बारे में हम discuss करेंगे. Question number 1 is, Ram said to me, I'm going to Jaipur. Is this a direct statement or indirect? ये पहला स्टेटमेंट जो है आपका, पहले क्वेश्चन वाला जो स्टेटमेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट है. ओके, सो हाउ कैन वी कन्वर्ट दिस इनटू एन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट? इसको एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? मैम फर्स्ट का ये हो जाएगा. ए, ओके. Okay, so anyone else would like to support the answer and or any other options would you like to choose? C. C, okay, A and C. ए ही होगा मैडम. Okay, let's see which option is correct. Option A is correct. जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का कन्वर्जन करते हैं, your the verb or you can say the helping verb of your sentence changes in the past tense. ठीक है, आपका जो tense होता है वो change होके past tense में जाएगा. So I am going to Jaipur will become he was going to Jaipur. Why does it become past tense? कोई मुझे बता सकता है कि past tense क्यों change हो जाता है? This statement, this question statement is in present tense. और इसका इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जब लिखोगे तो पास्ट टेंस में हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? Can anyone explain me why does this change happens in the past tense from present tense to past tense? अच्छा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, किसी को पता है? Can anyone tell me the difference between direct and indirect statement? मैम डायरेक्ट में होता है कि उसने कहा और इनडायरेक्ट में होता है कि उसके द्वारा कहा गया. Okay, somewhat आपने जो बोला सही है, but it is not clear. I believe जिनको नहीं पता होगा उनको clear नहीं हुआ होगा. See, direct, indirect, the difference between both the sentences is direct statement means if I'm saying a statement, जैसे कि मैंने कहा कि I have given you a homework that you have to submit it tomorrow or day after tomorrow, जब भी उसका class, ठीक है? So after that, this statement that I said was direct statement because ये मैंने directly आपसे कहा. Now some of the students were absent. अगर वो नेक्स्ट डे आएंगे तो आप जब उनको बताएंगे कि मैम ने ये होमवर्क दिया था
Ma'am said that you have to submit this and this is as a homework for the next day. That statement becomes a past tense because it is in the past relative to the direct statement. Even after finishing this class, जब आप next class की तरफ जाएंगे और किसी और को ये statement बताएंगे कि मैम ने ये homework दिया है, इस homework को कल submit करना है या next class में submit करना है. So it becomes past tense relative to the sentence that is directly said by me. जब ये इनडायरेक्ट का क्या मतलब हुआ कि मैंने नहीं कहा ये स्टेटमेंट, ठीक है, मैंने खुद से तुम्हें जाके नहीं बोला. फॉर एग्जाम्पल इफ सम स्टूडेंट, कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है जो एब्सेंट है आज, ठीक है, उसे मैंने ये स्टेटमेंट डायरेक्टली तो नहीं कहा कि आपको नाउन वाला जो होमवर्क है मुझे सबमिट करना है, वो किसी और के थ्रू से पता चलेगा. हो सकता है कि कोई उसका क्लासमेट बताए, हो सकता है कि कोई और बैच का बच्चा उसे बताए, दोनों बैच के जैसे बच्चे हैं तो हो सकता है 445 के बच्चे को 4 के बच्चे को बताए. तो इस टाइप से जो ट्रांजेक्शन होता है, आपका फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, तो वो डायरेक्ट नहीं होने का कारण है कि मैं डायरेक्टली उसे नहीं बोल रही हूँ, तो वो इनडायरेक्ट बन जाता है. एंड बिकॉज आई हैव ऑलरेडी सेड दिस स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मैंने बोल चुका है, इसीलिए उस टाइम वो प्रेजेंट में रहेगा व्हेन आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग. एंड जब आप रिपीट करेंगे इस स्टेटमेंट को, तब ये रिलेटिव पास्ट में चला जाएगा, चाहे आप आज ही के दिन इसके बारे में बात कर रहे हैं या नेक्स्ट डे के बारे में बात कर रहे हैं. It becomes relative past to the time when I have actually said that statement. जब वो स्टेटमेंट मैंने खुद से बोला, उस टाइम से रिलेटिव जब आप किसी और को ये बात बताएंगे, तब वो पास्ट में चला गया होगा. तो दैट इज वाई जो आपका डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्शन होता है, इसमें जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है उसका इनडायरेक्ट वर्जन में हमेशा पास्ट में रहता है. इट इज ऑलवेज इन द पास्ट. ओके, और वो पास्ट का भी 4 टाइप्स है, तो उसमें कौन सा टाइप रहेगा वो आपको देखना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 2. मोहन सेड टू हर, यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क. Okay, now this Ma'am, statement is already option in A. the past. Yes, मैम बी Option होगा ऑप्शन. B होगा. Okay. ऑप्शन A होगा तो क्यों होगा A और B होगा तो क्यों होगा B? Can you answer that question? Are you able to explain your choices? आपने अगर A ऑप्शन चूज किया तो क्यों किया और B ऑप्शन चूज किया तो क्यों किया? Are you able to explain that? Why will be the answer A या why will be the answer B? क्यों होगा? This statement is already present in the past. ये statement already past में है. That means काम हो चुका है. The actual work that has been already completed, उसके बारे में बात हो रहा है. For example, if I'm giving you the homework, you have completed. अब आप मुझे वहां जाके क्या बोलेंगे नेक्स्ट क्लास में? मैम we have completed the homework, we would like to submit it, right? तो काम आप कर चुके हैं, उसके बारे में आप मुझे कल बताएंगे कि मैम हमने काम कर लिया, होमवर्क कर लिया. So the work is already completed. That main task is in past only. Now इस statement को when you're converting, obviously past से past जब change होगा तो past क्या हो गया? काम complete हो चुका है, ठीक है. जब काम कोई complete already हो चुका है, past में ही शुरू होके past में ही खत्म हो गया था, मैंने क्या बताया था? कौन सा टेंस यूज होता है past का? जब आपका कोई काम ऑलरेडी पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही खत्म हो गया, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू स्टार्टेड सम वर्क ऑन मंडे एंड यू हैव कंप्लीटेड इट ऑन ट्यूसडे, ठीक है, एंड टुडे इज व्हाट? फ्राइडे. तो आज जब उस बारे में बात करोगे, देन व्हिच टेंस आर यू गोइंग टू यूज? कौन सा टेंस लगाओगे उसमें? भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब याद, कितना भी पढ़ा लो तुम लोग को, सब भूल जाओ तुम लोग. You will be using past perfect tense. आप past perfect tense लगाएंगे तो यहाँ पर जो आपका tense यूज हो रहा है that will be converted into past perfect. Past perfect में क्या लगता है? Had लगता है और आपका verb का थर्ड फॉर्म लगता है. तो she had completed her
work. Okay, that is why A option is correct. समझ में आया सबको? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. Okay. Moving on to question number 3. Radha said to us, "You will get your salary from office tomorrow." Option A, ma'am. Option A. Okay. ओके, फिर here यहाँ पर जो आपका tomorrow, today, yesterday, इन चीजों का भी जब conversion होता है तो there is some rule that certain phrases are used for the conversion of those words. Okay. Today का अलग होता है, tomorrow का अलग होता है, yesterday का भी अलग होता है. You are not using the same words, even if it is yesterday, even if it is today, even if it is tomorrow. You're not using the direct words in the indirect sentences. वहाँ पर उसके लिए phrase use होता है. What phrase is used for yesterday? Yesterday के लिए कौन सा आप phrase use कर सकते हैं to indicate that day? Today के लिए, tomorrow के लिए, yesterday के लिए कौन सा phrase use होता है आपका indirect conversion में? टुमारो के लिए मैम नेक्स्ट डे, बिफोर डे. One minute. Tomorrow के लिए कौन सा phrase use होता है रुचि? नेक्स्ट डे होगा मैम. मैम नेक्स्ट. Tomorrow के लिए next day. Okay. Today के लिए? Today के लिए कौन सा use होगा? If I'm telling you that today your classes will be at 12. ठीक है, ये आपका direct statement है, मैंने बोला. When you are telling that statement to someone else, today or tomorrow, तो वो statement का conversion today का क्या हो जाएगा? प्रेजेंट डे में. This day or that day. ठीक है, when you're talking about itself, ठीक है, आज ही के बारे में आज ही बात कर रहे हो, indirect statement में this से हो जाएगा. या फिर अगर आज के बारे कल बात कर रहे हो या उससे पहले बात कर रहे हो, ठीक है, not today. अब if you're telling that yesterday's class was that day, ठीक है, तो yesterday का या तो आप that day लगा सकते हो या previous day लगा सकते हो. So these kind of phrases can be used. Yes. प्रीवियस डे ना मैम. हाँ बच्चे, yesterday के लिए आपका previous day लग सकता है, ठीक है, या आप particular किसी date के बारे में बोल रहे हैं तो that day भी लग सकता है, ठीक है. It indicates that prior days, ठीक है, उससे पहले वाले बिफोर दिन डेज जो नहीं भी लग हैं. सकता मैम. बिफोर डे. नहीं, बिफोर डेज नहीं लगता है, प्रायर लग सकता है, प्रीवियस लग सकता है, दैट डे लग सकता है, ठीक है. अब कोई एक पर्टिकुलर डेज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट 2-3 days प्रायर, ठीक है, तो उस केस में आप ऑन दैट डे लगाते हो व्हेन यू आर मेंशनिंग द डे, ठीक है. तो उससे पहले आप जब भी कोई स्टेटमेंट ऐसा लगाओगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसी टाइप का कन्वर्शन होगा. इफ यू आर यूजिंग टुमारो, तो यहाँ पर देखिए सारे ही कन्वर्शन में नेक्स्ट डे लिखा हुआ है. इफ यू यूजिंग यस्टरडे तो प्रीवियस डे, द डे बिफोर टुडे, ठीक है. इस टाइप का जो फ्रेजेस होता है वो फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं. So which one would be the correct answer for this? Question number 3 का क्या ऑप्शन करेक्ट होगा? I am only getting answer from one. ऑप्शन ए मैम. ऑप्शन ए. Option A. Okay. For rest of the students? Ma'am, option A. Okay, everybody is choosing option A. ठीक है, option A में है, Radha told us that we would get our salary from our office the next day. Okay, so most of you are saying option A. Is there anyone who is opposing this?
Is there anyone who is opposing this? कोई और ऑप्शन जो कोई चूज करना चाहता है? ऑप्शन ए ही होगा मैम, ये है Okay, ऑप्शन। let's see what is the correct option. Option A is correct. ठीक है, राधा told us, said का भी देखिए, said जो होता है जब उसका कन्वर्जन होता है तो told हो जाता है, ठीक है। told us that we would, यहाँ पर we will जो है आपका यहाँ पर perfect में convert हो गया, ठीक है। we would get our salary from our office the next day. Okay, moving on to the question number 4. Maya said to him, you can do this work. Ma'am, option A. Option E, ma'am. Option. Why do you think option A is correct? किस किस चीज का यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, where you have to take care of the changes? Said का told मैम, can का could. Okay. This का that भी मैम. Okay, yes. So as I told you, जैसे this हो गया, ठीक है, this का that convert हुआ, can का could convert आप बोल रहे हो, और said का told होगा conversion. So let's see what is the answer. Option A is the correct one. Said का told हो जाएगा, can का could हो जाएगा. He is used in every sentence, even though, ठीक है, यहाँ पर आपका he use हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर him लगा हुआ है, तो आपको पता चल गया कि आपका किस sentence का जो, हाँ, he is not allowed to enter the class. So as I told you कि him जो है यहाँ पर लगा हुआ है इस sentence में, first part of sentence में, ठीक है, that is why second sentence जो है यहाँ पर, second sentence जो है यहाँ पर you जो लगा है, you आपको कैसे पता चलेगा कि he या she है, यहाँ वाले sentence में, ठीक है। Yes, next question. If you don't keep quiet, I shall shoot you, he said to her in calm voice. What will be the indirect statement for this? Option C, ma'am. Ma'am, option C. Option C, okay. See here आपका conversion जो है वो पूरी तरह सेम नहीं दिख रहा है, like in prior sentences you have seen कि यहाँ वाला portion यही रहता था, यहाँ वाला portion नहीं रहता था, but in this case ये वाला जो portion है, he said to her in calm voice, that has been converted. पवन क्लास में है? नो मैम, वेटिंग में है, वेटिंग रूम में। क्लास में प्रेजेंट है पवन? नो मैम। ओके, यस, so as I told you, यहाँ पर आपका जो conversion हो रहा है, he said to her in calm voice, जो आपका second part of sentence है वो आपका front में आ गया है, and the second part is the first part is shifted to the second part. That means यहाँ पर interchange हुआ है दोनों portion में, जो आपका जो statement, actual statement जो उसने बोला और जो narrate किया जा रहा है कि किसने कहा, कैसे कहा, वो आपका first part में आ गया, और जब जो actual sentence बोला वो second part में जा रहा है. Okay. So is there anyone who would like to choose any other option, या फिर सभी कोई C के सपोर्ट में? Is there any student who would like to choose any other option? Okay, let's see what is the answer. Answer is B. He warned her calmly that he would shoot her if she didn't. यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है वो कंप्लीट आपको दिख रहा है, यहाँ पर मुझे तो नहीं दिख रहा है ये सेंटेंस करेक्ट कंप्लीट.
इज दिस सेंटेंस कंप्लीट? ये आपको सेंटेंस कंप्लीट दिख रहा है क्या? No, ma'am. Complete नहीं. नहीं, कंप्लीट नहीं है, बट स्टिल द ऑप्शन इज करेक्ट. ठीक है, ऑप्शन करेक्ट है. यहाँ पर बस सेंटेंस कंप्लीट नहीं किया गया. He warned her calmly that he would shoot her if she didn't kept quiet. Keep quiet. ठीक है, हाँ, इसीलिए यहाँ पर मैं बोल रही थी कि सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं. यहाँ पे कंप्लीट नहीं होने की वजह से नहीं पता चल रहा है कि कीप जो है आपका, कीप आपका कन्वर्ट होके केप्ट हो जाएगा. ठीक है, जैसे ये वाला भी सेंटेंस जो है दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इसका इनडायरेक्ट वर्जन नहीं है. ठीक है, दिस इज नॉट मतलब इंटर रिलेटेड नहीं है. ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है. जो बी ऑप्शन वाला सेंटेंस है दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट, बट इट इज नॉट द कन्वर्जन ऑफ इन दिस डायरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, दैट इज व्हाई डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. यस, क्वेश्चन नंबर 7. I told him that he was not working hard. I told him he was not working hard. Option A, ma'am. ऑप्शन ए हो जाएगा मैम. Option A. Okay. Anyone else? मैम ऑप्शन ए होगा. सब कोई बोल रहे Option A. ऑप्शन ए होगा. ओके, okay, let's see what is the option. Option A is correct. He said to him, you are not working hard. मुझे ये बताइए यहाँ पर ये स्टेटमेंट किस किस फॉर्म में है? ये स्टेटमेंट किस फॉर्म में है और ये स्टेटमेंट किस फॉर्म में है? ये स्टेटमेंट किस फॉर्म में है? ये स्टेटमेंट किस फॉर्म में है? दोनों किस फॉर्म में है स्टेटमेंट? इनडायरेक्ट फॉर्म में. कौन सा वाला? दिस वन? यस मैम. टोल्ड. यस मैम. आई Yes, टोल्ड this हिम one दैट ही is in वाज indirect form और ये इनडायरेक्ट फॉर्म. आपका direct डायरेक्ट है form मैम. है. ठीक है, I told that he was not working hard is your indirect Yes, ma'am. sentence, and I said to him, you are not working hard is your direct sentence. ये डायरेक्ट Question है. number 8. His father ordered him to go to his room and study. His father ordered him to go to his room and study. Option A, ma'am. Option A. Okay. यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पर ऑर्डर्ड लिखा हुआ है. ठीक है, बट देयर इज नो इंडिकेशन हियर, यहाँ पर ऑर्डर्ड नहीं लिखा है. ठीक है, so when you convert from direct to indirect or indirect to direct, sometimes emotions also matter. ठीक है, आप किस तरह बोल रहे हो वो भी मैटर करता है कि आपका कन्वर्शन किस तरह रहेगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सेइंग समथिंग, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कन्वर्शन किया था, said का आपका क्या हो गया था? told कन्वर्ट हो रहा था बिकॉज इट इज नॉट इंडिकेटेड हाउ इट इज said. ठीक है, किस तरह बोला गया है ये इंडिकेट नहीं किया गया. यहाँ पर देखिए वार्निंग दी गई है, यहाँ पर said लिखा गया है, तो लेकिन दिस इमोशन दैट इज कन्वेड फ्रॉम दिस मैसेज, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, जो इमोशन कन्वे किया गया है वो क्या है? वार्निंग का है. दैट इज व्हाई व्हेन यू आर कन्वर्टिंग दैट इनटू इनडायरेक्ट, ही वार्नड हर कामली. ठीक है, यहाँ पर काम वॉइस में बोला गया है, उसको भी इंक्लूड किया है. और इसमें जो इमोशंस छुपा है, यानी कि इस स्टेटमेंट में जो इमोशन है इसमें वार्न किया है, तो वो भी यहाँ पर said या फिर told की जगह क्या लिखा हुआ है? he warned her calmly that he would shoot her. Understood? तो यहाँ पर जब ordered है, ठीक है, this is indirect sentence, तो जरूरी नहीं है कि आपका डायरेक्ट सेंटेंस में said हो या ordered ही लिखा हो. ठीक है, यहाँ पर said हो सकता है या told हो सकता है, कुछ भी वहां पर लिखा हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट में आपका जो इमोशंस होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम शाउटिंग एट यू, ठीक है, इट नॉट नेसेसरीली बी रिटन इन द नरेशन. नरेशन में लिखा होना जरूरी नहीं है. ठीक है, समटाइम्स यू इफ समबडी इज रीडिंग एनी बुक, अगर कोई स्टोरीज आपको पढ़ने की आदत है तो आपको यहाँ पर दिखा होगा कि देर आर सम सर्टेन सेंटेंसेस, ठीक है, जहाँ पर जो राइटर्स होते हैं और जो नरेटर्स होते हैं,
वो इमोशंस डालने के लिए व्हाट दे डू, इफ यू आर शाउटिंग, लाइक आपको अगर शो करना है कि वो शाउट कर रहे हैं, तो व्हाट दे विल डू, ही सेड करके दे विल राइट एवरीथिंग जो शाउट किया गया है, वो पूरा स्टेटमेंट कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। दैट इंडिकेट्स दैट यू आर शाउटिंग दैट स्टेटमेंट, ठीक है। वहां पर ही शाउटेड की जगह ये जो स्टेटमेंट है, हिज फादर शाउटेड, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट में शाउटेड कहीं कहीं नहीं लिखा रहता है, ठीक है, समटाइम्स राइटर्स व्हाट दे डू, यहाँ पर हिज फादर सेड और ये गो टू योर रूम टू योर एंड डू योर स्टडी, ये जो स्टेटमेंट है इसको पूरा कैपिटल में कर देंगे। दैट इंडिकेशन इज व्हाट, वो इंडिकेट कर रहा है कि वो वर्ड्स जो है वो आपने शाउट करके ही बोले हैं, या और करके बहुत जोर से उसको बोला है ये काम करने के लिए। So sometimes it is not necessary that every emotion is conveyed to you by words, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको वहां पर वार्निंग अगर लिखी है तो वहां पर वार्निंग वर्ड मेंशन किया गया हो, अगर आपको शाउटिंग लिखा है तो शाउटिंग वर्ड मेंशन किया गया, अगर आपको सॉफ्टली बोला है तो वो सॉफ्टली वर्ड मेंशन किया गया हो, विस्पर किया है तो मेंशन किया जा सकता है, कभी नहीं किया गया है। तो वो इमोशंस आपको कभी कभी आपको sometimes you have to find it through reading it, ठीक है। पूरा पैसेज रीड करने में कभी कभी फाइंड आउट करना पड़ता है, कभी कभी आपको पूरा सेंटेंस रीड करने में ही पता चल जाता है। so sometimes you have to find out which meaning or which emotion is conveyed by the statement itself, okay। so which option is the correct one, कौन सा ऑप्शन चूज कर रहे हैं आप लोग? ऑप्शन ए मैम। ए मैम। ऑप्शन ओके, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हिज फादर सेड, अगेन यहाँ पर देखिए ऑर्डर्ड था, ठीक है। कन्वर्जन में इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में ऑर्डर था, बट यहाँ पर सिर्फ सेड लिखा गया है, टू गो टू योर रूम एंड स्टडी। इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड दैट ही वाज ऑर्डर्ड टू डू दैट, ठीक है। यहाँ पर कैसे पता चल रहा है, बिकॉज ऑफ द स्टेटमेंट गो टू योर रूम एंड स्टडी, ठीक है। दिस इज इफ आई एम टेलिंग यू, ठीक है, you should be present in the classroom when the class is there, ठीक है। when the class during the class timing you should be present in the classroom. This is an order, no, this is a request, ठीक है, that you should be present in the classroom। ये आपको बताया जा रहा है, ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको पास ऑन किया जा रहा है। and if I'm doing what, if I'm saying this, that you had to be present in the classroom when the class is going on, that is an order, ठीक है। तो किस स्टेटमेंट में आपका किस तरह से आपका स्टेटमेंट बोला गया है, यू हैव टू टेल कि व्हिच इमोशन हैज टू बी ट्रांसफर्ड इन द कन्वर्शन, आपका कौन सा इमोशन वहां पर कन्वर्शन में लगेगा, बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दैट इमोशन हैज टू बी मेंशन, ठीक है। जब आप इनडायरेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं यानी कि आप किसी और की बात बता रहे हैं, ठीक है, तो आप बताते हैं ना कि मैम ने बहुत डांटा था उसको या सर ने बहुत डांटा था उसको, तो वो डांटना आपको बताना पड़ता है, बिकॉज दैट पर्सन इज नॉट प्रेजेंट देयर टू विटनेस एवरीथिंग, ठीक है। तो जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्जन करते हो, you have to convert each and every emotion from the direct statement into your indirect statement. Understood? Any doubt regarding these questions में कोई डाउट है? जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का डिफरेंस बताया वो समझ में आ गया सबको? याद नहीं रहेगा तो मेक Yes, स्टार्ट ma'am, मेकिंग नोट। अगर याद नहीं रहता है, आप लोग को 1000 बार बताया मैंने, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट डिक्टेटिंग समथिंग, मैं आपको जबरदस्ती नहीं लिखवा रही हूँ, डजंट मीन कि आप नोट्स नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मैं जो भी यहाँ पे क्लास में बताती हूँ, तुम लोग को आदत हो गया है कि मेरी क्लास में कॉपी किताब कभी लेके नहीं बैठते हो, एटलीस्ट एक नोटबुक लेके बैठा करो, नोट्स बनाओ व्हाट एवर आई एम टॉकिंग अबाउट, जो डिफरेंसेस मैं बताती हूँ, जो रूल्स मैं बताती हूँ, कहाँ पर कौन सी चीज लगेगी, कहाँ पर क्यों नहीं लगेगा, वाई द आंसर इज करेक्ट, यू शुड नो दैट, ठीक है। तुक्का कब तक मारोगे आप लोग? यू हैव बीन गिवन सो मच अपॉर्चुनिटी, आपको ये चीज मैं कम से कम 4-5 महीने से पढ़ा रही हूँ, बट स्टिल यू आर लाइक आपको वहां पर अटक जाते हो जहां पर नहीं अटकना चाहिए इतना पढ़ाने के बाद। यू आर नॉट स्मॉल चिल्ड्रन, यू आर स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर मुझे नहीं याद रह रहा है ये चीज, तो मैं इसका नोट्स बनाकर रखूंगा अपने पास, ताकि मैं बाद में रेफर कर सकूं, ताकि मैं बाद में रिवाइज कर सकूं। ये चीजें हो सकता है अभी आपके कोई काम की नहीं है, सिलेबस में नहीं है, इसका कोई यूनिवर्सिटी पेपर नहीं है, बट दिस इज समथिंग दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर फ्यूचर। आपके इस इन सब छोटे मोटे क्वेश्चन को पास ऑन करने के बिना आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर सकते हो, आप कोई भी इंटरव्यू क्रॉस नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी कंपनी इज टेकिंग रिटन एग्जामिनेशंस बिफोर टेकिंग इंटरव्यूज राइट नाउ,
एंड इवन इफ यू आर टेकिंग इंटरव्यूज, आप अगर इंटरव्यू लगाते भी हो तो आपको ये सारी बेसिक नॉलेज रहेगी, तभी तो आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म कर पाओगे। इतनी बार समझाया है दैट these things are not helpful for your university examination, these things are helpful for your life, बट फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, क्लास में बदतमीजी करनी है हर चीज पे। इफ यू डोंट वांट टू लर्न फ्रॉम मी, इट्स ऑल राइट, ठीक है, आई डोंट माइंड, डोंट कम टू माय क्लासेस। मुझे 4 बच्चे मिलेंगे, मैं 4 बच्चों को पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट सेमेस्टर पूछ लीजिएगा 4 4 5 के स्टूडेंट्स को, ओनली 2 स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम इनटू माय क्लास, 2 स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम इनटू माय क्लास, आई वुड बी टीचिंग देम। मैंने पढ़ाया है 2 बच्चों को, 3 बच्चों को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितने भी बच्चे, एक भी बच्चा रहेगा मैं उसको पढ़ाऊंगी। बट यू डोंट नीड टू कम इनटू माय क्लासरूम एंड डिस्टर्ब ऑल द स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग। इफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी, नहीं समझ में आ रहा है, अटेंडेंस के लिए आपको प्रॉब्लम है, जाके बात करिए नीचे एडमिनिस्ट्रेटिव से कि मुझे इनकी क्लास नहीं करनी है, मुझे अटेंडेंस दे दीजिए। मैं आपकी तरफ से सिफारिश कर दूंगी कि ये क्लास में नहीं पढ़ना चाहता है, मत पढ़ने दीजिए इसको। इफ यू डोंट वांट टू स्टडी, डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स टू स्टडी। नहीं पढ़ना है, मत पढ़ो। क्लास में बदतमीजी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आती है। तुम्हारी वजह से जो अच्छे खासे बच्चे हैं, जो एक्चुअल में पढ़ना भी चाहते होंगे ना, उनका भी मन रह जाता है कि यार क्या ही पढ़ें, कुछ समझ में तो आता नहीं, कभी कोई इतना हल्ला कर रहा है, कभी कोई ये हल्ला कर रहा है। Okay, since we have completed ये डॉल हाउस कंप्लीट हो गया है, तो डॉल हाउस मैंने कहा था कि क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी, ठीक है। देयर आर फ्यू क्वेश्चंस एंड विल स्टार्ट द नेक्स्ट स्टोरी, ठीक है। उसके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको, अगर अपने से आप कुछ क्वेश्चंस बना पा रहे हो, बिकॉज यू हैव द स्टोरी, तो कुछ क्वेश्चन जो आप अपने से लिख सकते हैं, ठीक है। और मॉरल ऑफ द स्टोरी वगैरह मैंने लिखने बोला था, तो यू हैव टू गिव द आंसर टुमारो, ठीक है। कल के कल मुझे क्लास में what is the moral of the story का आंसर चाहिए लिखा हुआ। अंडरस्टूड? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? डॉल हाउस से किसी को कोई डाउट है तो वो भी लिख के रखना, यू कैन आस्क मी इन द क्लासरूम इटसेल्फ। पढ़ के आना, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं क्वेश्चन करूंगी कल क्लास में। अंडरस्टूड? Okay, ma'am. Yes, ma'am. लेट मी जस्ट